بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ وہ رات کے وقت گھر سے نکلی تھی، مکمل لڑکے کا بھیس بدل کر۔ اس نے ویٹر کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری ملی تھی۔ لڑکی سے لڑکا بن کر جانا اس کی مجبوری تھی۔ لمبے قد اور دبلی پتلی جسامت کی وجہ سے کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہی تھی، اس کی ماں نے ہزاروں خدشات کا اظہار کیا تھا۔ میری بیٹی، دنیا بڑی خراب ہے، کسی نے تجھے پہچان لیا تو جینے نہیں دے گی۔ وہ شان بے نیازی سے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اماں، آپ کی غلط فہمی ہے کہ کوئی مجھے پہچان سکتا ہے۔ میں فاطمہ سے فاروق بن چکی ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکلی تھی۔ ہوٹل پر بے پناہ رش تھا۔ ویٹر کے لباس میں بھی اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ وہ جلدی جلدی گاہکوں کو نمٹا رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ فون سننے کے لیے وہ ہوٹل کے سنسان حصے کی طرف آ گئی۔ تبھی بات کرتے کرتے اسے سامنے پڑا پتھر نظر نہیں آیا اور وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گئی۔ اس کے سر پر پہنی ہوئی ٹوپی کہیں دور جا گری۔ لمبے ریشمی سیاہ بال ایسے بکھرے تھے جیسے کوئی سیاہ بادل ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے اس کی ٹوپی کہاں غائب ہو گئی تھی جس سے وہ اپنی پہچان چھپا لیتی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے بال سمیٹے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سامنے موجود 2 آنکھیں اسے دیکھ چکی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس خوبصورت اور گورے چٹے لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی 4 بہنیں تھیں اور ایک بوڑھا معذور باپ۔ غریب ماں جس نے باپ کی معذوری کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے انہیں پالا تھا، اور رضیہ ساری بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس نے میٹرک کرتے ہی ماں سے کہا کہ وہ کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہے، کیونکہ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اوپر سے اس کے باپ منصور کی روزانہ آنے والی دوائیاں۔ لیکن ماں کہنے لگی، بیٹی، اتنی کم تعلیم میں تو کسی فیکٹری میں کام کیسے کرے گی؟ اچھا ہے کہ پڑھ لکھ کر کسی اچھی نوکری پر لگ جائے تاکہ گھر کے حالات بدل جائیں۔ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے انٹر تک تعلیم حاصل کی اور پرائیویٹ گریجویشن بھی کر لیا۔ اپنے گھر کی قسمت بدلنے کے لیے وہ سڑکوں پر دھکے کھانے لگی۔ دن رات خواری کے باوجود اس سے کوئی نوکری اسے نہیں مل سکی۔ اس نے اپنی ماں، باپ، بہنوں کو بہت ساری امیدیں دلائی تھی۔ زندگی بدلنے کے خواب اس کی آنکھوں میں بھی تھے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اس دن جب بھوکی پیاسی حالت میں سڑکوں پر خواری کے باوجود اسے نوکری نہیں ملی، آج اس کا گھر جانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تبھی تو سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر وہ پوری شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ تبھی وہ چونک گئی۔ سامنے ایک دیوار پر سفید رنگ کا کاغذ چسپاں تھا، جس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ایک ویٹر کی ضرورت ہے۔ لیکن اسے پڑھ کر مایوسی ہوئی کہ وہاں ایک لڑکے کی ضرورت تھی، جبکہ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس کی تعلیم، قابلیت، ہر لحاظ سے وہ نوکری اس کے مطابق تھی، لیکن فرق صرف جنس کا تھا۔ اب اس کے دل نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں یہ نوکری حاصل کر کے رہے گی۔ جانتی تھی کہ 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اور تنخواہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے۔ اگر اسے یہ نوکری مل جاتی تو اس کی خوش نصیبی ہوتی۔ یہی سوچ کر پورے جوش و خروش سے اگلے دن وہ ایک نیا روپ بدل کر اس ہوٹل میں جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی پرانی پینٹ شرٹ پہنی، بالوں کو باندھا، اور جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ بالکل ایک لڑکے کے روپ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کی ماں بہنیں اسے اس روپ میں دیکھ کر حیران تھی۔ بار بار پوچھنے پر بھی اس نے اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا اور چپ چاپ کان میں سرگوشی کی کہ وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دیا جائے۔ اب وہ اس ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر آئی تو مردوں کا بے پناہ رش تھا، اس کے لیے نئی اذیت کا باعث بنا۔ لیکن اسے یہاں نوکری مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ بھاگ بھاگ کر پہلا دن کام کیا تو انچارج بھی خوش نظر آیا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن ایک مصیبت تھی، اس کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ اگر وہ لڑکا ہوتی تو یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ لڑکے کے بھیس میں ایک لڑکی تھی، اور رات کو آنا اور صبح جانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس بات کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ جانتی تھی کہ اس وقت گھر کے حالات کتنے خراب ہیں۔ اسے نوکری کی شدت سے ضرورت تھی۔ یوں وہ وہاں پر آنے لگی، لیکن اس کی ماں کو سینکڑوں اعتراضات تھے۔ میری بیٹی، کیا کر رہی ہے تو؟ کیوں اپنی پہچان کھو رہی ہے؟
वो संजीदगी से कहने लगी, अम्मा ये ज़रूरी है, अब परेशान मत हो, वहाँ किसी ने मुझे नहीं पहचाना और देखो मुझे नौकरी भी आसानी से मिल गई है। वो बड़ी पुरजोश थी लेकिन उसका भांडा फूटने वाला था। शुक्र था कि किसी ने उसे नहीं देखा। जल्दी से वो वापस आकर काम करने लगी। होटल में आज बहुत ही हंगामा मचा था। लग रहा था कि कोई ख़ास शख्सियत यहाँ तशरीफ़ ला रही है। फिर पता चला कि होटल का मालिक आ रहा है। शीशे की तरह पूरे होटल को चमकाया जा रहा था। फिर सामने ही वो आकर खड़ा हो गया। वो चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहा था जब उसकी नज़र फातिमा पर ठहर गई। उसकी आंखें अंदर तक खोजने वाली थी। फातिमा के हाथ बिला वजह ही कांपने लगे। दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। न जाने कि होटल के मालिक की आंखों से उसे बहुत डर लग रहा था। क्या वो उसे पहचान गया है? तभी उसने यहाँ से घबराकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो मालिक इशारे से उसे बुला रहा था। उसके हाथों में ठंडे पसीने आने लगे। वो उसके सामने जा खड़ी हुई। होटल का मालिक उसे सर से पांव तक देखते हुए कहने लगा, तुम यहाँ के लगते नहीं हो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम फारूक है। फातिमा ने अपनी आवाज़ भारी बनाने की कोशिश की। ठीक है फारूक, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मालिक ने उसकी तारीफ की तो वो खुश हो गई। वो तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। होटल के बेतहाशा कमरे थे लेकिन 3 कमरे हमेशा बंद रहते। उस तरफ कोई जाता ही नहीं था। अक्सर ही फातिमा को घुटन या गर्मी महसूस होने लगती तो वो उन्हीं कमरों में चली जाती, अपने लंबे लंबे बाल खोलती, पसीना साफ करती और फिर से सामने लगे आईने में अपने आप को देखकर बाहर निकलती। वो इस बात की तसल्ली करती कि अपने हुलिये से कहीं से भी वो लड़की दिखाई न दे। वो मुकम्मल तौर पर एक लड़के के रूप में ढल चुकी थी, लेकिन अब उसके साथ अजीब बात होने लगी थी। वो जहाँ भी जाती उसे ऐसा महसूस होता कि कोई साया उसके पीछे है जो बार बार वो पलट कर देखती। कोई उसकी खोज में था, एक ना नजर आने वाली चीज़। इस बात पर वो परेशान रहने लगी। आज भी होटल के किचन में वो अकेली थी जब बाहर से पिज्ज़ा का ऑर्डर आया। वो ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी कि कब पिज्ज़ा बनकर तैयार होता है और वो उस टेबल तक पहुंचा दे। लेकिन यहाँ पर भी उसे अपने इर्द गिर्द किसी की नज़रों का एहसास हो रहा था। एक अजीब सी गर्मी उसे वजूद में महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे मुसलसल देखे जा रहा है। अब वो जल्दी से बाहर आ गई। शुक्र था कि ऑर्डर तैयार हो गया था। टेबल तक उसे पहुंचाकर वो अपने अंदर अजीब सी घुटन महसूस कर रही थी। तभी सामने खड़े इंचार्ज से कहने लगी, सर मुझे आज छुट्टी चाहिए, जल्दी घर जाना चाहता हूँ। इंचार्ज ने घूर कर उसे देखा। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वो दबे दबे लहजे में उससे कहने लगा, तुम जानते हो कि सारे रूम बुक हैं और अब जबकि मेहमानों को अटेंड करने के लिए कोई दूसरा वेटर नहीं, तुम जल्दी जाने की बात कर रहे हो। सर मेरी तबीयत ख़राब है। बस वो जल्दी घर जाना चाहती थी, इसीलिए मुसलसल इंचार्ज की मिन्नतें किए जा रही थी। किसी की नादीदा निगाहों का एहसास उसे अजीब से वहम में मुब्तला कर रहा था। तभी नज़दीक से एक दूसरा वेटर जिसका नाम नादिर था वो चलता हुआ आया और कहने लगा, सर आप फारूक को छुट्टी दे दे, मैं हैंडल कर लूँगा सारी सिचुएशन। उसने शुक्रगुजार नज़रों से नादिर को देखा। नादिर भी यहाँ काम करने वाला वेटर था जो बहुत दूर किसी कच्ची आबादी से आता था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन नादिर ने कभी उसे अपने बारे में नहीं बताया। जब भी नादिर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता तो फातिमा घबराकर वो हाथ पीछे कर लेती। वो नहीं चाहती थी कि नादिर उसे हाथ लगाए। वो उससे दूर दूर रहा करती थी, जबकि नादिर हर वक्त उसे देखता रहता। अब भी नादिर ने जब इंचार्ज से कहकर उसे छुट्टी दिलवाई तो वो खुश हुई थी। 4 बजे घर आ जाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उस होटल में इतना खौफ महसूस हो रहा था कि वो उस वक्त घर जाने पर मजबूर हो गई। जैसे ही आधा रास्ता पार किया उसे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उस सुनसान सड़क पर कोई उसके पीछे पीछे चलता आ रहा है। खौफ के मारे उसके कदम डगमगाने लगे। अंदर से वो एक लड़की ही थी, पहले से ही बाहर से उसने एक लड़के का रूप बदल लिया था। ये सूरत हाल कि कोई ऐसी चीज़ उसका पीछा कर रही है जो उसे दिखाई नहीं दे रही है बहुत खौफनाक थी। वो अपनी जान उस चीज़ से छुड़वाने में नाकाम रही। ऊपर से उसके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे जो वो रिक्शा करवा कर घर चली जाती। पैदल ही पैदल होटल से घर तक जाना इतना आसान नहीं था। ये रोज़ाना पौने घंटे का रास्ता आना जाना उसे बड़ा आसान लगता था, पर अब ऐसे लग रहा था जैसे उसे चलते हुए मुसलसल 2 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी घर आने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसके कानों में फजर की अजान की आवाज़ आई तो उसे कुछ सुकून हुआ। अपने इर्द गिर्द उसने चादर लपेट ली, टोपी उतार कर पॉकेट में छुपा लिया। वो मुकम्मल तौर पर एक लड़की बन चुकी थी। मुश्किल से हाँफती कांपती घर पहुंची।
अगर मैं अम्मा को ये बात बता देती हूँ तो वो किसी सूरत भी होटल में नौकरी करने नहीं देती। लेकिन परेशानी उसे इस बात की थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ उससे गलती हुई है। उस दिन भी गलती से उसने अपनी आंखों में काजल लगाया और वो भूल गई थी कि वो एक लड़का बनकर होटल में नौकरी करने जाती है। बड़ी मुश्किल से काजल उसने साफ किया और काम पर चली आई। अब अंधेरे में आना जाना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। जब से उसे ये एहसास हो रहा था कि कुछ न कुछ उसके साथ अजीब हो रहा है, तब से ही वो चाहती थी कि रात के वक्त वो काम पर जाना छोड़ दे। उसने फैसला किया कि आज वो इंचार्ज से जाकर कहेगी कि मैं दिन में काम करना चाहती हूँ। पूरी रात मेहनत से काम करती रही। सुबह जैसे ही छुट्टी का वक्त हुआ वो इंचार्ज के पास पहुँच गई। सर, मैं दिन की नौकरी कर सकता हूँ? वो इल्तिजाइया लहजे में कह रही थी, भारी लहजा बनाकर। इंचार्ज ने उसे घूर कर देखा और कहने लगा, क्यों फारूक, तुम्हें क्या मसला है? अभी तुम नए हो, तुम्हें अपने काम में मेहनत करनी चाहिए। तो वो घबरा कर कहने लगी, लेकिन सर घर में परेशानी है। रात में अक्सर मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं उन्हें संभालता हूँ। उनको अस्पताल ले जाने में भी मुसीबत होती है घर वालों के लिए। अगर मैं दिन में काम करूँगा तो मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा उनके साथ गुजारने में। वो अजीब अजीब बहाने बना रही थी। इंचार्ज का कोई इरादा नहीं था, उसे ज़रा भी ढील नहीं देना चाहता था। लाख रोने धोने के बावजूद भी वो इस बात पर राजी नहीं हुआ कि फारूक रात की बजाय दिन में नौकरी करे। लेकिन तभी नादिर चला आया। सर, फारूक जो कह रहा है आप उसकी बात मान लीजिए। न जाने उसके लहजे में क्या असर होता कि इंचार्ज फौरन उसकी बात मानने पर तैयार हो जाता। अभी भी इंचार्ज ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और उसे कह दिया कि ठीक है, अब से तुम दिन में आओगे और आज रात मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। ये सुनकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। फिर वो खुशी खुशी अम्मा को बता रही थी कि अब उसकी दिन में नौकरी हो गई है, रात में कोई मसला नहीं। अम्मा और छोटी बहनें भी ये सुनकर खुश हुई थी। अब्बा भी उसके लिए परेशान रहता था। सब जानते थे कि वो एक लड़का बनकर उस होटल में नौकरी करती है, लेकिन पिछले कुछ दिन से वो इस कदर परेशान थी कि अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बता सकी। फिर 2 दिन हुए थे उसे काम पर जाते हुए। उस रात छुट्टी के बाद वो घर लौट रही थी। रात के 9 बज रहे थे जब बीच रास्ते में उसे दूर से एक नौजवान आता दिखाई दिया। जैसे ही वो उसके करीब आई तो हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि नादिर था। शुक्र था कि वो एक लड़की के रूप में नहीं थी, वरना नादिर आज उसे पहचान लेता। फारूक, तुम्हारी छुट्टी हो गई? नादिर उसे रास्ते में देखकर खुश हुआ। वो कुछ घबरा कर कहने लगी, हाँ हाँ, मेरी रोज़ाना 9 बजे ही छुट्टी होती है और मैं इसी रास्ते से गुजर कर घर जाता हूँ। नादिर ने उसकी बात पर सर हिलाया। उसके अंदर तक जाती हुई निगाहें फातिमा को बता रही थी कि नादिर उसके अंदर कुछ तलाश करना चाहता है, जैसे वो ये पता लगाना चाहता हो कि फातिमा लड़का है या लड़की। तभी नादिर उससे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर फातिमा के होश उड़ गए। वो गुस्से से कहने लगी, क्यों? मैं एक नौजवान हूँ, चला जाऊँगा, तुम्हें मेरी ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। नादिर को खरी खरी सुनाकर वो तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ आने लगी, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। उसके हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। क्या नादिर उसकी सच्चाई जान गया है? फिर उस रात वो सो रही थी, तभी उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी रेशमी जुल्फों से कोई खेल रहा है। वो बार बार नींद में उस हाथ को पीछे हटा देती, लेकिन वो हाथ फिर से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगता, तो कभी उसके चेहरे पर आई लटें पीछे करने लग जाता। पहले पहल तो उसे ये ख्वाब किसी कैफियत महसूस हो रहा था। उसकी नींद एकदम से टूटी थी। अचानक उसने अपना हाथ पीछे को किया। फातिमा का दिल दहल कर रह गया था। सच में ही उसके पास कोई था, एक लंबा चौड़ा साया। अचानक ही उसके सामने से गायब हुआ। वो पागलों की तरह घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। उसकी तीनों छोटी बहनें गहरी नींद सो रही थी, जबकि अम्मी और अब्बू दूसरे कमरे में सोए थे। ये महसूस करके कि कोई अभी भी कमरे में मौजूद था जो उसके बालों से खेल रहा था, वो मुसलसल रोए चली जा रही थी। उसकी सिसकियां उसे छोटी बहन सकीना ने भी सुन ली थी। क्या हुआ बाजी, तुम क्यों रो रही हो? वो परेशान हो गई थी। एकदम से ही उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ और वो चुप हो गई। सकीना हैरान थे कि अभी तो फातिमा रो रही थी और अभी खुद उसे सोने के लिए कहने लगी है। तो वो करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह हकीकत थी कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो सच में उसे महसूस हो गया था। इसका मतलब कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जिसका उसे इल्म नहीं। दूसरे दिन वो काम पर चली आई। चुपचाप अपना काम करती फिर रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से ये दिन गुजारा था।
अब वो कभी भी किसी जगह पर अकेले जाने से घबराने लगी थी। किचन में काम करने की वजह से चूंकि गर्मी भी उसे ज़्यादा लगती थी, इसलिए उसे बहुत जल्दी पसीने आने लगते थे। लेकिन आज वो काम करने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके बाल बिल्कुल ढीले हो चुके हैं, जो अनकरीब खुलने वाले। अगर उसके बाल खुलेंगे तो सब पर यह राज खुल जाएगा कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इसलिए घबराहट में वो सबसे नजरें बचाकर उन्हीं कमरों की तरफ चली आई जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। अब वो इत्मीनान से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठी। पूरा कमरा तरतीब से सजा हुआ था। सामने ड्रेसिंग टेबल पर उसने अपने सर से टोपी उतार कर रखी और बालों को अच्छी तरह से बांधने लगी, लेकिन जैसे ही बाल बांधे ऐसे लगा दोबारा से किसी ने उन बालों को खोल दिया हो। वो सख्त खौफजदा हो गई। दाएं बाएं देखने के बावजूद उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जान तो उसकी जब निकली जब एक आवाज़ के साथ जोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद हो गया और वो उसमें कैद होकर रह गई। वो बुरी तरह से घबरा गई। किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब अंदर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और इस कमरे में मौजूद बाथरूम, खिड़की पर लगे पर्दे, हर चीज़ से उसे खौफ महसूस हो रहा था। वो हल्के से दरवाज़ा बजाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी। न जाने कितने घंटे बीत गए लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। वैसे भी उस तरफ कोई आता जाता भी नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन लेता। उसकी सिसकी अरूज पर थी। न जाने कितने घंटे बीत गए, शायद शाम हो चुकी थी। तभी उसने एक बार फिर से अपने खूबसूरत हाथों से दरवाज़ा बजाया। उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी। उस वक्त उसे कोई भी देख लेता तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि यह होटल में काम करने वाला लड़का वही फारूक है। बिल्कुल एक लड़की की तरह नजर आ रही थी, कमज़ोर और बेबस। तभी उसकी मेहनत रंग लाई। अचानक दरवाज़ा खुला, लेकिन सामने खड़े नादिर को देखकर वो चौंक गई और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है नादिर। नादिर हैरान होकर कहने लगा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया था फारूक? फातिमा उसकी बात सुनकर कुछ घबरा गई। एकदम से भूल चुकी थी कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का बनकर यहाँ आई है। तभी भारी आवाज में कहने लगी, वो मैं अंदर किसी काम से आया था कोई चीज लेने, तो न जाने कैसे ये खुद ब खुद दरवाजा बंद हो गया। नादिर ये सुनकर हैरान रह गया। कहने लगा, तो तुम लड़कियों की तरह क्यों घबरा गए हो? देखो अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई शरारत के तौर पर भी ऐसा कर देता है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो उसी वक्त अपनी ड्यूटी पर आया था। उसकी रात की ड्यूटी थी जबकि फातिमा की दिन की। फिर नादिर उसके साथ चलते हुए कहने लगा, देखो इस तरफ ना ही आओ तो बेहतर है, क्योंकि इंतजामिया ने पहले इन कमरों को सील कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे खौफनाक वाकयात हो चुके हैं जिनका ताल्लुक इंसानी दुनिया से नहीं बल्कि जिन्नात से है। ये सुनकर फातिमा का तो चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो यहाँ अक्सर ही आती रहती थी, इसका मतलब है कि तब से ही उसके साथ ये सब हो रहा है। क्या कोई जिन उसके पीछे पड़ गया है? उसका पीला पड़ता चेहरा और खौफजदा आंखें देखकर नादिर कहने लगा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कभी कभी तुम्हारा चेहरा इस कदर मासूम और खौफजदा नजर आता है कि मुझे तुम पर लड़की होने का गुमान होता है। नादिर उसे खोजने वाली निगाहों से देख रहा था। तभी फातिमा अपने आप को संभलते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल मेरी छोटी 3 बहनें हैं, उनके साथ रहकर मेरे अंदर भी लड़कियों वाली आदतें हैं। यही बात है कि मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। लेकिन शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मुझे बता दिया कि ये जगह सेबज़दा है। अब तो मैं कभी भूले भटके से भी यहाँ पर नहीं आऊँगा। अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। अगरचे इंचार्ज ने उस पर गुस्से का इजहार किया था कि वो पूरे दिन से कहाँ गायब था। इतने मेहमान जमा थे होटल में, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं। फातिमा ने उससे माजरत की, लेकिन नादिर की निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया। अब वो घर आ गई। दिन ब दिन उसका उस होटल में नौकरी करना मुश्किल हो गया था, लेकिन 5 स्टार होटल होने की वजह से यहाँ तनख्वाह अच्छी खासी थी। उसे अभी 2 महीने ही हुए थे काम करते हुए, लेकिन इतना उसे महसूस हो गया था कि पहले जो घर में फाके की नौबत रहती थी, अब सब पेट भरकर खाना खाने लगे थे। लेकिन फातिमा को यकीन था कि होटल वालों पर यह राज खुला कि वो लड़की है तो वो उसे दिनों में ही नौकरी से फारिग कर देंगे। वो इस बात को सोचकर उदास रहती। फिर शाम अपनी नौकरी से वापस घर की तरफ लौट रही थी जब उसे महसूस हुआ जैसे 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। क्या वो उसे पहचान गए? उसकी जिसामत से कि वो एक लड़की है, वो बार बार मुड़कर पीछे देखती। वो दोनों आदमी उसी के बारे में बातें करते उसी की तरफ इशारे कर रहे थे।
वो तेज तेज चलने लगी तो वो दोनों आदमी भी तेजी से उसके पीछे आने लगे। अब तो फातिमा को पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों आदमी उसी का पीछा कर रहे हैं। वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी, लेकिन अचानक किसी से बुरी तरह टकराई। सामने से आते नादिर को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके चेहरे पर खुशी की चमक छा गई। पहले भी वो उससे रास्ते में टकरा गया था, लेकिन अब उसे अपने सामने देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो नादिर से चहकते हुए कहने लगी, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? शुक्र है कि मुझे मिल गए तुम। उसने पलटकर उन दोनों आदमियों को देखना चाहा जो नादिर को देखकर फौरन ही रफू चक्कर हो गए थे। फिर वो जल्दी से घर आ गई। लेकिन अगले दिन जब वो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद घर जाने के लिए परेशान हो रही थी, कल वाली बात उसे अच्छी तरह याद थी कि जब कोई चुपके चुपके उसके पीछे ही आने लगा। उसने जैसे ही पलटकर देखा, नादिर उसके पीछे था। मेरी भी ड्यूटी टाइम है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वो घड़ी पर नज़र जमाते हुए कहने लगा। फातिमा ने एक ठंडी सांस भरी। शायद वो उसके बारे में जान गया कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, तभी तो उसकी कमज़ोरी से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब वो अपने दिल में शदीद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नादिर को मना भी नहीं कर सकी कि वो उसे घर छोड़ने नहीं जाए। रास्ते में नादिर इधर उधर की बातें कर रहा था। फिर वो बेख्तियार पूछ बैठी कि तुम कहाँ रहते हो? नादिर ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से दाएं तरफ जो कच्ची बस्ती है, मैं वहीं पर रहता हूँ। मेरे साथ मेरी एक माँ है, बस हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। फातिमा ने यह सुनकर सर हिलाया। फिर तो ये रोज़ ही होने लगा। जैसे वो ड्यूटी ख़त्म करके फारिग होती, नादिर उसे लेने आ जाता और वो उसे घर तक छोड़ देता। लेकिन दूसरी तरफ वो अजनबी एहसास फातिमा के साथ अब भी मौजूद था। हर पल उसे वो ये एहसास दिलाता कि वो उसके साथ है। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये कुछ और नहीं बल्कि वही जिन्नाती साया है जो नासिब ज़दा कमरों में जाने की वजह से उसके पीछे लगा है। काश वो इस बारे में अपनी माँ से कह सकती, लेकिन माँ से कहेगी तो वो यही कहेगी कि होटल की नौकरी छोड़ दे, जो उसके लिए नामुमकिन था। अब वो परेशान सी रहने लगी। एक दिन अपने दिल की बात नादिर को बताते हुए वो रह भी न सकी। मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। जब से मैं इन कमरों में गई हूँ तब से ही ऐसे लगता है जैसे कोई मेरे साथ है। मुझे किसी का अजनबी साया दिखाई देता है। यह सुनकर नादिर चौंक गया और उसे कहने लगा, इसका मतलब है कि वो ऐसे तुम्हारे पीछे भी लग गया है जैसे कि इससे पहले एक लड़की के पीछे लगा था। फातिमा बुरी तरह उछल पड़ी। क्या नादिर को पता चल गया है कि वो एक लड़की है? उसके हाथ पांव बुरी तरह से कांपने लगे। नादिर कहने लगा, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे होटल में एक लड़की काम करती थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ जबकि तुम तो एक नौजवान हो? नादिर की आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी, जैसे फातिमा के बारे में वो बहुत कुछ जान गया हो। लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहता था कि वो समझ गया है कि फातिमा एक लड़की है। फातिमा के तो हाथ पांव कांपने लगे। वो नजरें झुकाकर कहने लगी, क्या हुआ था उस लड़की के साथ? तो नादिर कहने लगा, दरअसल पहले हमारे होटल में लड़कियां भी काम करती थी, लेकिन आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता रहता। इन तीनों कमरों में रहने वाला वो आसिफ किसी न किसी लड़की के पीछे लग जाता। कभी किसी लड़की को वो दिखाई देता तो कभी किसी लड़की को। लड़कियां चीखें मारती हुई वहां से निकलती थी। ऐसे में होटल में आने वाले मेहमान भी खौफजदा हो जाते। तंग आकर इंचार्ज ने सारी लड़कियों को फारिग कर दिया और कहा कि आज के बाद सिर्फ लड़के ही होटल में काम करेंगे ताकि आए दिन ये तमाशे होना बंद हो जाए। अब जब से लड़कियों ने काम छोड़ा है, उस दिन के बाद से ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो जिन जो सिर्फ लड़कियों पर आशिक होता है वो तुम्हारे पीछे क्यों लग गया? नादिर की आंखों में हैरत थी जबकि फातिमा के हाथों में ठंडे पसीने आ रहे थे। इसका मतलब कि वाकई उसके पीछे कोई जिनजाद है जो मुसलसल उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। उसके माथे पर टपकते पसीने देखकर नादिर कहने लगा, तुम परेशान मत हो, कुछ दिन तक वो तुम्हें परेशान करेगा। अगर तुम्हारा पीछा ना छोड़े तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें किसी आमिल वगैरह के पास लेकर जाऊंगा। वैसे भी हमारी कच्ची बस्ती में एक बड़ा आमिल बैठता है, वो इन मसलों को चुटकियों में हल कर देता है। नादिर ने जैसे उसकी परेशानी दूर की, फातिमा ने उसका शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में खौफजदा होते हुए घर आ गई। आकर उसने खाना भी नहीं खाया और बिस्तर पर लेटी तो फिर से उसके बालों में कोई उंगलियां फेरने लगा। रेशमी बाल चारपाई से नीचे लटक रहे थे, उनसे बहुत ही खूबसूरत थे। तभी उसकी माँ कमरे में आई और उसे दूध देने लगी,
लेकिन बे इख्तियार उसके मुंह से चीख निकली थी। फातिमा, ये क्या कर रही हो तुम? उसने पलटकर अपनी माँ को देखा और हैरान रह गई। मैंने क्या किया अम्मा? तुमने अपने सारे बाल जमीन पर नीचे लटकाए हुए, वो भी रात के 10 बजे। तुम जानते भी हो कि मैंने मना किया है रात को अपने बाल नहीं खोलते, जिन्नात आशिक हो जाते हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो हैरत से उछल पड़ी, खौफजदा नजरों से उसे देखने लगी। माँ, क्या सच में जिन्नात का वजूद लड़कियों पर आशिक हो जाता है? उसकी माँ ने उसे बेख्तियार सीने से लगा लिया और कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, तू तो रात भर जागती रहती है, मेरी नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। उसकी माँ उसके लिए फिक्रमंद थी। फातिमा को मालूम हो गया कि माँ उसके बारे में सब कुछ जान गई है। अब उसने रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, अम्मा मैं क्या करूँ? जब से उस होटल में काम करने लगी हूँ तब से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी मैंने बाल खुद नहीं खोले थे, बल्कि मैं तो अपनी चुटियाँ बनाकर सोती हूँ। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे रात में कोई मेरे बालों से अटकीलियाँ करता है। वो माँ को बताए बिना नहीं रह सकी। उसकी माँ कहने लगी, पहली फुर्सत में तो उस होटल से काम छोड़ दे। लेकिन फातिमा के अंदर भी एक अज़म था। वो कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं उस होटल से काम नहीं छोड़ूंगी, भले से कुछ भी हो जाए, बल्कि मैं उसका मुकाबला करूंगी जो मुझे परेशान कर रहा है। वो खुद अंदर से परेशान थी, लेकिन माँ पर जाहिर नहीं होने दिया। दूसरे दिन तैयार होकर फिर से होटल में चली गई और मामूल के मुताबिक काम करने लगी। लेकिन जैसे ही रात को घर जाने लगी, रास्ते में उसे फिर से नादिर नजर आया, जो घर तक उसे छोड़ आता था। वो नजरें झुकाकर कहने लगी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्या हुआ फारूक, मुझे क्या कहना चाहते हो? नादिर हैरान होकर कहने लगा तो वो उंगलियां चटखाते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ। अचानक उसकी अपनी स्याह आंखों से उसने नादिर की तरफ देखा तो वो कहने लगा, हाँ मैं ये हकीकत पहले दिन से जान गया था कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि मैंने उस दिन होटल में जब तुम छुपकर बाल बना रही थी तो देख लिया था। तुम वाकई एक हसीन खूबसूरत लड़की हो। नादिर ने उसे सच्चाई बताई तो वो शदीद शर्मिंदगी महसूस करने लगी। इसका मतलब है कि वो उसके धोखे को पहचान गया था। फिर वो कहने लगी, नादिर ये मेरी मजबूरी है कि मैं एक लड़का बनकर काम करने पर मजबूर हूँ, लेकिन तुम मेरी मदद करो। किसी तरह इस जिन्नात से मेरी जान छुड़वा दो जो मुझ पर हावी हो चुका है। वो रात को मुझे परेशान करता है। मैं जब भी अकेली होती हूँ कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाता है। नादिर कहने लगा, क्यों परेशान होती हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैं कल ही तुम्हारे लिए एक तावीज़ लेकर आऊँगा। वो तावीज़ पहनने के बाद तुम्हें वो जिन्नात परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर फातिमा खुश हो गई और कहने लगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी इस सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। दरअसल होटल में काम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर तनख्वाह बहुत अच्छी है और मेरा बाप बीमार है, जबकि मुझ पर 3 बहनों और अम्मा अब्बा की जिम्मेदारी है। नादिर ने उससे वादा कर लिया कि वो उसका ये राज कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं करेगा। अब वो थोड़ी मुतमईन हो गई थी। अगले दिन ही नादिर ने उसी सुनसान रास्ते पर उसे वो तावीज़ पकड़ा दिया और कहने लगा कि इसे गले में पहन ले। लेकिन वो देख नहीं सकी थी कि तावीज़ देते हुए नादिर की आंखों में खुसूसी चमक थी जिसे फातिमा ने नहीं पहचाना। लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। जैसे ही वो तावीज़ फातिमा ने पहना, उसे ऐसे लगा कि उसे जैसे किसी ने ज़ोरदार झटका सा खाया हो। लेकिन वो मुतमईन हो गई कि अब वो जिन्नात कभी उसके पास नहीं आएगा। इधर से वो उसके साथ रात भर शरारतें करता है, अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। यही सोचकर वो बहुत खुश थी। लेकिन रात को वो सो रही थी तब उसे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। सामने कोई खड़ा सफ़ेद रंग का लिबास पहने, उसकी चमकदार आंखें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। वो अपनी आंखें मसलती हुई उसे खोलने की कोशिश कर रही है। वो उस वजूद को देखना चाहती है जो उसके सामने खड़ा है, लेकिन न जाने उसके जिस्म में ताकत ही नहीं रही। वो धीरे धीरे वजूद उसके करीब आने लगा। फिर वो उसके सामने बैठ गया, लेकिन अब तक उसका चेहरा फातिमा की नज़रों से ओझल था। वो बड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। एकदम से अपनी अलग से आवाज़ निकालकर कहना चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए। वो कौन है? उसके पास क्यों आया है? लेकिन फातिमा को लगा उसका वजूद बिल्कुल बेबस हो गया है। फिर उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, फातिमा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल उससे भी ज़्यादा, तुम सिर्फ मेरी हो। उसकी अजीब सी बात सुनकर वो अंदर तक हिलकर रह गई। चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर कोई ताकत बाकी नहीं बची।
अचानक ही वो एक झटके से उठी। सामने खड़ा वो सफ़ेद वजूद भी गायब हो गया था। पलक झपकते ही उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के कमरे में गई और अपनी माँ से लिपट गई। अब वो हिचकियों से रो रही थी। उसकी माँ ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना उस होटल के काम को छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तो वो रोते हुए कहने लगी, लेकिन अम्मा, उसने मुझे कहा था कि इस तावीज़ को पहनने के बाद वो मुझसे दूर हो जाएगा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो आज फिर मुझसे हावी है। उसे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था। अगले दिन ही उसकी माँ ने मना किया कि वो होटल में नौकरी करने ना जाए, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मुझे नादिर से मिलना है। उसने मुझे झूठ क्यों कहा? मैं जानना चाहती हूँ कि जब इस तावीज़ की कोई ताकत ही नहीं थी तो उसने मुझे पहनने के लिए क्यों दिया। शदीद गुस्से से फातिमा का बुरा हाल था। अगला दिन बड़ी मुश्किल से उसने पूरा दिन गुजारा। बात बात पर इंचार्ज से डांट खाई, लेकिन उसे यहाँ किसी की परवाह नहीं थी। वो बस रात होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही होटल से निकली, अपने दाएं बाएं देखा, रोज़ाना की तरह नादिर थोड़ी सी आगे जाकर उसे मिल जाता था, लेकिन आज उसका नामो निशान नहीं था। जबकि आज वो उससे मिलना चाहती थी। पूरे रास्ते वो उसे तलाश करती आई, लेकिन नादिर उसके सामने नहीं आया। अब उसे बड़ी शिद्दत से रोना आ रहा था। दिल तो चाह रहा था कि वो तावीज़ उतार कर रख दे, लेकिन आज फिर वो उसे आजमाना चाहती थी, इसलिए पूरी रात जागती रही। जैसे ही रात के 12 बजे वो ऊपर छत पर चली आई। वो देखना चाहती थी कि आखिर उसके सामने कौन आता है जो नीम गुनूदगी की कैफियत में उसे महसूस होता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। खुली आंखों से देखते आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की आगोश में चली गई। तब कोई चुपके से उसके सामने आकर बैठा। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए जो नींद में उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वो सामने बैठकर उसके बाल संवार रहा था। एक झटके से फातिमा ने आंखें खोली, क्योंकि उसकी नींद अभी कच्ची थी, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने का मंजर बड़ा अजीब था। नादिर उसके सामने बैठा था, अपनी चमकदार आंखों से उसे देखते हुए। उसकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत थी। तुम यहाँ कैसे, वो भी आधी रात को? वो 2 कदम पीछे हुई। नादिर ने बड़ी मोहब्बत से उसे देखा और वो कहने लगा, मैं ही तो हर रात तुम्हारे सामने आता हूँ, और कौन आएगा? किसी की इतनी हिम्मत नहीं मेरे होते हुए। फातिमा, तुम सिर्फ मेरी हो। उसका लहजा, उसकी आंखें एकदम बदल गई। फातिमा के जिस्म में तो जैसे लहू ही बाकी नहीं बचा था। यह एहसास बड़ा ही अजीब था कि नादिर एक इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है, जो उसके पीछे वहीं से होटल से लगा था, और आज तक वो उसके सामने बैठा उसे मुसलसल देखे जा रहा था। कोई भी कुव्वत उसे दूर नहीं कर सकती थी। फातिमा के मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हुए, बस उसके मुंह से यही निकल सका, तुम कौन हो? तभी नादिर सफ़ेद आंखों से उसे देखने लगा और कहने लगा, मैं वही जिनजाद हूँ जो उस होटल में रहता हूँ। दरअसल मैं लड़कियों पर आशिक हो जाता था, लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होती थी जितनी तुम हो। फातिमा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बालों ने मुझे दीवाना कर दिया है। इस कदर मजबूर हुआ हूँ कि एक इंसानी रूप में आकर तुम्हें मुतासिर करने की कोशिश करने लगा। उस दिन जब तुम अपनी जुल्फें खोलकर दरख्त के नीचे खड़ी थी, वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं था, तो तुम ये सोच रही थी कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो तुम्हें देख रहा है, लेकिन मैं मुसलसल तुम्हें देख रहा था। मैं हैरान रह गया कि सामने खड़ा एक लड़का अपनी जुल्फें संवार रहा है। वो लड़की है क्या? वो भी इतनी खूबसूरत? मैं तो पहले ही किसी लड़की के आने के इंतज़ार में था। मैं क्या जानता था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की इस होटल में काम करने लगेगी। अब मैं तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता था। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं किस तरह इस होटल में काम करने लगा हूँ। जैसे मैं वहाँ पर काम करने गया, इंचार्ज ने फ़ौरन मुझे काम पर रख लिया, क्योंकि मैंने अपनी ताकत, अपने अमल से उसका जहन काबू में कर लिया था। मैं जो भी उसे कहता, वो फ़ौरन उस पर राज़ी हो जाता। यही वजह थी कि जब मैं तुम्हारी साइड लेकर उससे बात करता, वो फ़ौरन मान जाता। आज तक मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन अगर तुमने मुझसे ये कहा कि यहाँ से चले जाओ, तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम पर आशिक हो गया हूँ। फातिमा का वजूद खौफ से थर थर काँप रहा था। उसके मुंह से अल्फाज अदा हुए। वो खौफज़दा लहजे में कहने लगी, जब भी तुमने मुझे तावीज़ दिया था जिसका उल्टा असर हुआ। यह सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहने लगा, हाँ, उस तावीज़ के अंदर ये ताकत थी कि तुम मुझे पहचान सको। दरअसल मैं इतने दिन से तुम्हारे सामने आ रहा था, लेकिन तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि नादिर नाम का ये नौजवान जो बार बार तुम्हारी मदद करने के लिए आता है, वो एक जिन ज़्यादा जो तुम्हारी हिफाजत करता है।
اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، دنیا کی ہر بری طاقت سے تمہیں بچاؤں گا۔ کیا تمہیں میرا ساتھ منظور ہے؟ فاطمہ جان چکی تھی کہ وہ ایک طاقتور جنزاد ہے اور اس کے سامنے انکار کرنے کا مقصد اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہہ دیا کہ ہاں، وہ اس کی طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس کے سامنے آنے سے اسے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر جنزاد کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر میں دوبارہ تم سے ملنے آؤں گا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ فاطمہ کی رکی ہوئی سانسیں جیسے پھر سے بحال ہوئی، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو کر چھت پر گر چکی تھی۔ صبح اس کی ماں پورے گھر میں تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جیسے ہی چھت پر آئی، اس نے فاطمہ کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا۔ صدمے سے اس کی حالت بری تھی۔ فوراً ہی اسے لے کر وہ پیر کے پاس جا پہنچی جو ایسی چیزوں کا علاج کرتا تھا۔ تیری بیٹی کے اوپر ایک جنزاد حاوی ہے۔ فاطمہ کی ماں کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پیر نے اسے سچائی بتا دی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پیر سے کہنے لگی، میری بیٹی بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی ہے، اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ پیر نے اس عورت کو روتے دھوتے دیکھا تو کہنے لگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شریر جنات نہیں ہے جو تیری بیٹی کو پریشان کرے، بلکہ وہ ایک نیک جنات ہے، اگر چاہے تو اس کی ذات سے فائدہ بھی تو اٹھا سکتی ہے۔ نہیں پیر صاحب، بس کسی طرح اس سے میری بیٹی کی جان چھڑوا دے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ میری بیٹی کو پریشان کرے۔ پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تو پھر کل اسے میرے پاس لے کر آنا، ابھی تو وقت چلا گیا ہے اسے حاضر کرنے کا، لیکن کل میں کوشش کروں گا کہ وہ میرے سامنے آ کر بات چیت کر سکے۔ فاطمہ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ گھر سے کافی دیر تک آ کر بے ہوشی کے زیر اثر رہی، پھر اٹھ کر کہنے لگی، اماں تم مجھے کہاں لے کر گئی تھی؟ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک دم بہادر بن گئی تو اس کی ماں کہنے لگی، کچھ تم پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، میں ہرگز تجھے اس ہوٹل میں نہیں جانے دوں گی۔ اچانک ہی اس نے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے اور کہنے لگی، نہیں، وہ میرا محافظ بن کر میری زندگی میں آیا ہے، میں اسے کبھی نہیں کہوں گی کہ وہ میری زندگی سے واپس جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن اور پورے جوش و خروش سے وہ ہوٹل میں کام کرتی رہی۔ ایک لڑکے کے روپ میں اسے کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ پھر رات ہوئی تو وہ جنات اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں آنے والے لوگ جو اسے نظر بھر کر دیکھتے، اس کے لمبے چوڑے سے وجود کو اور اس کی خوبصورتی کو، لیکن وہ اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے گزرتی تھی۔ فاطمہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے ایک جنات کے وجود سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ ابھی اپنے گھر والوں کے لیے وہاں نوکری کرنا چاہتی تھی اور اسے اس جنات کی طاقت کی ضرورت تھی۔ اس نے اس لیے اسے کہہ دیا کہ جب تک وہ چاہے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جن ذات کی طاقت پا کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ لیکن ایک دن وہ حیران رہ گئی جب اسے پتہ چلا کہ اب ہوٹل والے لڑکیوں کو بھی ہوٹل میں بھرتی کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر دن بدن گاہکوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا ایک لڑکی مینیجر کی ضرورت تھی۔ تبھی وہ انچارج کے سامنے گئی اور کہنے لگی، سر، اس پوسٹ کے لیے میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ انچارج اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، کون ہے لڑکی؟ مجھے بتاؤ۔ اچانک فاطمہ نے اپنے سر سے کیپ ہٹا دی اور کہنے لگی، سر، میں ہی ہوں۔ میری مجبوری تھی کہ میں ایک لڑکا بن کر یہاں کام کر رہی تھی، لیکن اب میں یہ پوسٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میری تعلیم بھی اچھی ہے اور مجھے تجربہ بھی ہے۔ پورے اعتماد سے وہ انچارج کے سامنے کھڑی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں کا اثر تھا یا پھر جنات کے کیے ہوئے عمل کا کہ اسے انچارج نے مینیجر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ یوں فاطمہ نے اپنی زندگی بدلنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب رہی تھی۔ آج وہ مینیجر بن کر اس 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کر رہی تھی اور اس کی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ اب وہ ہوٹل میں کام کرنے کے لیے آتی جاتی رہتی تھی اور اب اس کے گھر کے حالات بھی مکمل طور پر بدل چکے تھے، لیکن کوئی بھی آج تک یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنے زیادہ سالوں تک ایک لڑکے کے روپ میں نوکری کرنے والی یہ خوبصورت سی لڑکی فاطمہ کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں پر کام کرتی رہی تھی۔ لیکن اس کی حقیقت صرف ایک ہی مخلوق جانتی تھی، اور وہ تھا وہی جنزاد نادر، جو آج بھی اس کے سامنے آ کر اسے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ فاطمہ کے گھر والے بھی سارے
अब अच्छी तरह से ये बात जानते थे कि वो जिन्नात ही उसकी हर तरह से हिफाजत करता आ रहा है। वो जिन्नात उसकी मदद भी करता है। यही वजह है कि आज फातिमा एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो जिन्नज़ाद उसकी ज़िंदगी से वापस चला जाए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।